Good morning, students. I'm Dr. Meenu Mittal, Assistant Professor in Zoology, Government PG College, Sector 1, Panchkula. Today, I will discuss about the type study Hadmania pallida that belongs to the subphylum Urochordata. So, before starting the details of all the systems of this type study, firstly, I will explain about the systematic position, or we can say the classification of this animal. Hadmania belongs to the phylum Chordata, subphylum Urochordata, class Eschidaceae, order Pleurogona, and type study that we are going to discuss is Hadmania pallida. Firstly, about habits and habitat. Hadmania is known as sea squat or sea potato. It is exclusively marine animal, pinkish in color. It shows gregarious behavior, that means around 10 to 12 individuals remains attached in a group at one place. It is ciliary feeder, hermaphrodite, and fertilization is external. It shows indirect development, that means there is presence of a free swimming tailed larva that is known as tadpole. It shows retrogressive metamorphosis. Next is external features. Hadmania is about rectangular in shape. It is divided into basically two parts, that is body proper and foot. The upper part is body proper and the lower part is foot, which is dirty, and the foreign particles are attached to this surface. And body proper is having branchial siphon and atrial siphon that are having branchial aperture and atrial aperture. Branchial aperture represents the anterior side and the side opposite to it is known as posterior side. नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट और ट्यूनिक. जो बॉडी है हडमानिया की वो कवर्ड रहती है टेस्ट से, एंड टेस्ट इज हैविंग मैनी कंपोनेंट्स. फर्स्ट इज मैट्रिक्स, मैनी कॉर्पसल्स, इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स, ब्लड वेसल्स एंड स्पिक्यूल्स. सो बेसिकली टेस्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हडमानिया की बॉडी का, जो उसे कवर करती है. और उसके मेन फंक्शंस है, सबसे पहले है प्रोटेक्शन, that will act as physical barrier, also act as accessory respiratory organ and tactile organ. It also provides support and attachment to the animal, and the spicules helps in protecting from the predators, that keeps off the predators. So these are the main functions of the test, or we can say the covering of Hadmania. नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटल और बॉडी वॉल. This mantle or body wall lies below the test. It encloses the atrium, and this is formed of three layers. Outer epidermis that secretes the test, middle mesenchyme that consists of various tissue fibrils, nerve fibrils, blood sinuses, etc., and the inner epidermis that lines the atrium. So basically the test is secreted by the outer epidermis of body wall. Next is atrium. It is a cavity that is enclosed by mantle or body wall. It is lined by ectoderm. It opens outside by atrial or cloacal aperture. Atrial aperture is a common opening for anus, reproductive organs and outgoing water. अब सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट सिस्टम की, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम. बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. और ये कैटेगराइजेशन जो है मैमल्स तक सिमिलर ही रहता है. एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम फर्स्टली डिवाइड करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को. सो एलिमेंट्री कैनाल की फर्दर जो कैटेगराइजेशन है, डिवीजन है, वो है माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. और इसमें बेसिकली दो ही जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है. वन इज लीवर एंड अनदर वन इज पाइलोरिक ग्लैंड. तो अभी हम सारे जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो इस पिक्चर को स्टडी करेंगे. दिस डायग्राम इज शोइंग द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हडमानिया आफ्टर डाइसेक्शन. तो इसमें सबसे पहले जो ब्रैंकियल अपर्चर वाला ये रीजन है, इसको हम जो है मानते हैं माउथ, और इसके नीचे जो प्रेजेंट है दैट इज बक्कल कैविटी. माउथ से बक्कल कैविटी और बक्कल कैविटी से नेक्स्ट जो पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज फेरिंक्स, और उससे पहले जो प्रेजेंट है दैट इज स्फिंक्टर एंड टेंटेकल्स, जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं.
तो उसके बाद जो मेन पार्ट है दैट इज फेरेंक्स, एंड दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ हडमानिया, जिसके अंदर स्टिग्मेटास प्रेजेंट रहते हैं और ट्रांसफर वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं। फेरेंक्स जो है आगे ओपन होता है इसोफेगस में, दिस इज इसोफेगस, and then esophagus will lead into stomach, then intestine, then rectum and anus। और intestine का जो ये लूप बनता है इसके अंदर प्रेजेंट रहता है कोनैन। उसके बाद लीवर यहाँ प्रेजेंट रहता है जो कि बाइलोब्ड है, यानी 2 लोब प्रेजेंट हैं। दिस इज राइट लोब ऑफ लीवर एंड दिस वन इज द लेफ्ट लोब ऑफ liver। So this is basically the diagram of alimentary canal of हडमानिया। अब हम इन सभी पार्ट्स को जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माउथ है, जो ब्रैंकियल अपर्चर वाला रीजन मैंने आपको बताया, दैट विल ट्रीटेड एज माउथ। इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ब्रैंकियल साइफोन एंड लीड्स इनटू बकल कैविटी। नेक्स्ट जो है बकल कैविटी, जिसको स्टोमेडियम भी बोलते हैं, और इसके अंदर जो प्रेजेंट रहता है दैट इज ब्रैंकियल स्फिंक्टर, जो रेगुलेट करता है इसकी ओपनिंग को। और स्फिंक्टर के नीचे प्रेजेंट रहते हैं 64 के अराउंड टेंटेकल्स, जो बहुत हेल्पफुल हैं एंट्री जो है माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स को उसको रेगुलेट करने में। तो फेरिंग्स में जो है ओनली माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स ही एंटर करते हैं, और जिसमें कौन हेल्प करता है, टेंटेकल्स। नेक्स्ट जो पार्ट है, जो लार्जेस्ट पार्ट है, दैट इज फेरेंक्स। बकल कैविटी ओपन्स इनटू फेरेंक्स। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज डिवाइडेड इनटू प्री ब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल सैक। अब हम इन दोनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और इनको मैं डायग्राम में भी आपको शो करूंगी। तो सबसे पहले है प्री ब्रैंकियल जोन, ये एंटीरियर पार्ट है और इसके अंदर क्या रहता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, और इन दोनों बैंड्स के बीच में जो ग्रूव प्रेजेंट रहते हैं उसको बोलते हैं पेरीफेरेंजियल ग्रूव। The posterior peripheral bands interrupted by dorsal lamina and endostyle. Next है posterior part, that is branchial sac or basket. This is the posterior and large part and perforated by gill slits and stigmata. The stigmata has cilia. Interstigmatic bars are also present between stigmata. A thin flap present at mid dorsal border of branchial sac is dorsal lamina, and at mid ventral groove is endostyle. So this figure shows the structure of pharynx, where the anterior part is prebranchial zone, which has peripharyngeal bands, that is anterior and posterior peripharyngeal bands, and the groove between these two bands is known as peripharyngeal groove. The posterior part is branchial sac, which is the largest part and also known as branchial basket. This has numerous gill slits or stigmata, and the stigmata bears long cilia or margins called lateral cilia. The posterior part of this pharynx is having dorsal lamina and the opening of esophageal area and also endostyle. This is a very important part in digestion that I will explain in the next slide also. So this is about the pharynx. Next is pharynx will open into esophagus, which is a short, curved and thick walled tube that will open in stomach. Stomach is thin walled, wider than esophagus and has sphincters at both the ends. Then stomach will lead to intestine, which is a U-shaped tube having descending and ascending limb. Intestinal loop encloses left gonad. It leads into rectum. Rectum is a short, narrow tube that opens into atrium or cloaca, and last is anus, which is a aperture bounded by 4 lips for the elimination of waste food or undigested food. So next part is digestive glands. The first gland is liver, which is large and bilobed that secretes protease, amylase, and lipase. The second gland is pyloric gland that consists of many branched tubules in the wall of stomach, and this gland functions like the pancreas of vertebrate. So next is physiology of digestion. Firstly, food. Hydmania is a filter or ciliary feeder, and the main food consists of microscopic organisms. Mode of feeding. In mode of feeding, the beating of cilia generates water current. That water currents will enter into mouth and then into buccal cavity and then in pharynx. The filtration by branchial tentacles will allow only microscopic particles to enter in the pharynx, and the large particles are expelled out by strong reverse current.
The food particles are trapped in mucus secreted by endostyle, that is the part of pharynx. Then mucus-laden food reaches to dorsal lamina. The dorsal laminar cilia beat backward to push food in esophagus. In esophagus, more mucus is added and food is transferred to stomach. So basically इसमें क्या है, जैसे ही वाटर करंट जनरेट होता है तो उसमें जो है सीलिया क्या करते हैं, बीट करते हैं और वाटर करंट जनरेट हो जाता है. वो वाटर करंट फिर एंटर करता है माउथ में, देन बक्कल कैविटी में और फेरेंक्स में, और उसकी एंट्री रेगुलेट होती है टेंटेकल से, जो अलाउ करते हैं सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को फेरेंक्स में एंटर करने के लिए. जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग जो रिवर्स करंट है उसके थ्रू एक्सपायर हो जाते हैं. उसके बाद जो फूड पार्टिकल्स है वो ट्रैप हो जाते हैं म्यूकस में, जो किससे सिक्रेट होता है, एंडोस्टाइल से. उसके बाद जो ये म्यूकस लेडन फूड है वो डॉर्सल लैमिना में पहुंचता है, और वहाँ पर जो सीलिया प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं फूड को किसमें, इसोफेगस में. इसोफेगस में फिर फर्दर उसके अंदर म्यूकस ऐड होता है, फूड कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक में फॉर डाइजेशन. सो इन डाइजेशन in stomach, as food has been entered in stomach, so digestion occur by liver, where amylase will digest starch, protease will digest proteins, and lipase will digest fats. In intestine, secretion of pyloric gland completes digestion. Absorption occurs in intestine and the undigested food expelled out through atrial aperture. So this was about the digestive system of Hadmania. Next system is respiratory system. The respiratory organ of Hadmania is branchial sac or pharynx. Chest also act as accessory respiratory organ. So physiology of respiration, it is very simple. The same water current brings dissolved oxygen in pharynx. Exchange of gases occur with water by highly vascular pharyngeal wall. Then water current will enter into atrium through stigmata, and exchange of gases takes place by vascular trabeculum, and water current flows through atrial. So this was about the physiology of respiration. Next is blood vascular system. The blood vascular system mainly consists of heart, blood vessels. When these three components will combine, then it will be known as blood vascular system, or these are the major components of blood vascular system. अब इसके बारे में हम जो है तीनों जो इसके पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले है हार्ट, विच इज इनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम एंड फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड. तो हार्ट इज अ thin walled cylindrical and highly contractile structure that you can see in this diagram, where heart is enclosed in this covering, that is pericardium. और अगर आप टीएस देखेंगे इसका तो इसमें आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ये पेरिकार्डियम है और बीच में जो ये हार्ट प्रेजेंट है. तो फ्लो ऑफ ब्लड जो है हडमानिया में वो किससे रेगुलेट होता है, पियर शेप्ड बॉडी इन द मिडल ऑफ पेरिकार्डियल कैविटी, बिकॉज valves are absent in Hadmania. Next जो major part है, that is blood vessels. There are four main blood vessels. First is ventral aorta, which is the largest vessel that bifurcates into anterior and posterior hypobranchial vessel after giving ventral test vessel. The anterior and posterior hypobranchial vessel supplies several transverse vessels to wall of branchial sac. Tentacular vessel supplies to tentacles, siphonal vessel will supply to branchial siphon, and posterior hypobranchial vessel sends a small vessel to esophageal area. तो ये सारी वेसल जो है वेंट्रल ओर्टा और जो इसकी ब्रांचेस हैं वो हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे. तो दिस इज अ डायग्राम शोइंग वेंट्रल ओर्टा एंड इट्स ब्रांचेस. तो ये जो है वेंट्रल ओर्टा है जो अपनी एक ब्रांच जो है सप्लाई करती है टेस्ट को, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट वेसल. और यहाँ से जो राइट साइड में बहुत सारी ब्रांच हैं वो क्या है, ट्रांसवर्स वेसल हैं. और उसके बाद जो है वेंट्रल ओर्टा दो पार्ट में आगे डिवाइड हो जाती है, दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वेंट्रल ओर्टा, दैट इज नोन एज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल्स. तो ये सारे जो है वेंट्रल ओर्टा है और इसकी जो है फर्दर ब्रांचेस हैं. Next है dorsal aorta, that is present mid dorsally, connected with ventral aorta by 5 to 7 pairs of transverse vessel. तो ये ट्रांसवर्स वेसल हैं, ये हेल्प करती हैं वेंट्रल और डोर्सल aorta को आपस में कनेक्ट होने में. उसके बाद न्यूरल वेसल है जो न्यूरल कॉम्प्लेक्स को सप्लाई करती है, और
From anterior end of dorsal aorta, a small branch supply to dorsal tubercle and 6 to 8 siphonal vessel to branchial siphon. So this figure shows dorsal aorta and its branches. तो ये जो है मेन dorsal aorta है, जो मैंने अभी बताया था, इसकी 5 से 7 पेयर जो ट्रांसवर्स वेसल निकलती हैं, वो फिर जो यहाँ पर प्रेजेंट थी वेंट्रल aorta, उसकी ट्रांसवर्स वेसल, तो ये आपस में फिर इनको कनेक्ट करता है। उधर से फिर साइफोनल वेसल है जो साइफन को जो है सप्लाई कर रही है, और फर्दर इसकी ब्रांच है वेंट्रोइंटेस्टाइनल वेसल और टेंटिकुलर वेसल, सब टेंटिकुलर वेसल्स। तो ये सारी जो है डोर्सल aorta और उसकी ब्रांच है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हडमानिया की बॉडी है उसमें ब्लड को सप्लाई करती है। थर्ड है ब्रैंकियोविसल वेसल, जो एक शॉर्ट वेसल है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पोस्टीरियर एंड ऑफ डोर्सल aorta, divides into right esophageal vessel that supplies to the right lobe of liver and right side of esophagus. फर्दर उसकी ब्रांच जो है वेंट्रोइंटेस्टाइनल वेसल, जो मैंने भी डायग्राम में भी आपको दिखाया था, दैट सप्लाइज ब्लड टू लेफ्ट साइड ऑफ इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, लेफ्ट गोनेड एंड लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। फोर्थ जो वेसल है दैट इज कार्डियोविसरल वेसल. इट इज अ शॉर्ट वेसल एंड ओरिजिनेट फ्रॉम डॉर्सल एंड ऑफ हार्ट. It also divides into right hepatic vessel that connected to right lobe of liver and esophagus test vessel connected to esophagus and test. Further, cardiovisceral vessel goes to left side and divided into median dorsal vessel, left gonadal vessel and gastrointestinal test vessel that supplies to the related organs. एक सबसे बड़ी जो बात है कि जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनके नेम जो आपने लर्न करने हैं उसमें इस तरीके से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अगर लिखा है गोनाइडल वेसल तो वो गोनाइड्स को ही सप्लाई करेगी, और अगर लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट गोनाइड को। सिमिलरली अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टेस्ट वेसल है यानी वो इंटेस्टाइन, स्टमक एंड टेस्ट को सप्लाई करेगी। तो जिस पर्टिकुलर ऑर्गन को कोई ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई करती है या रिसीव करती है वहाँ से ब्लड, तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी जो है नेमिंग होती है। तो बेसिकली हमने 4 तरह की ब्लड वेसल्स को स्टडी किया। तो ये डायग्राम जो शो कर रहा है कार्डियोविसरल वेसल को और इसकी ब्रांचेस को, जो अभी मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताई थी। तो इस डायग्राम में वो सारी इसकी ब्रांचेस प्रेजेंट हैं। फर्दर अगर ये तो था कि हर ब्लड वेसल का अलग अलग जो है डायग्राम में शो किया था। अगर आपको कोई कंबाइंड डायग्राम लर्न करना है तो आप इन्हीं सारी ब्लड वेसल्स को अगर एक साथ प्रेजेंट कर देंगे तो वो हो जाएगा उसका जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हडमानिया, जिसमें सारी की सारी ब्लड वेसल होंगी। यहाँ वेंट्रल aorta हो जाएगी, डोर्सल aorta और कार्डियोविसरल वेसल, इस तरीके से जो है सारी वेसल्स इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, इधर ब्रैंकियोविसरल वेसल एंड इट्स ब्रांचेस। तो आप चाहे ये क्यूमुलेटिव डायग्राम लर्न कर लो, चाहे जो है आप अलग अलग से हर वेसल का डायग्राम लर्न कर लें। एक चीज़ लर्न करने के बाद आप नेक्स्ट अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का, दैट इज ब्लड विच इज रेडिश, हाइपरटोनिक एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड हैविंग मेनी ब्लड corpuscles like colorless amoeboid leukocytes, orange cells, green cells, signet cells, eosinophilous cells, compartment cells, nephrocytes and lymphocytes. So various types of blood corpuscles are present in the blood of Herdmania, and these are shown in this figure like orange cell, rounded, circular, signet cells, green cells, compartment cells। तो ये सारी जो corpuscles हैं इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी जो है eosinophilus है, lymphocyte है, मैक्रोफेज है, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो दिस इज अबाउट द ब्लड corpuscles ऑफ हडमानिया। नेक्स्ट है जो इसका मेजर पार्ट, दैट इज कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। So flow of blood is maintained by peristaltic waves and a pear-shaped body in absence of valves in heart। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर जो है हार्ट में हडमानिया के वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये क्या करता है, पियर शेप जो बॉडी है वही इसको कंट्रोल करते हैं, प्लस पेरिस्टाल्टिक जो वेव्स हैं वो इसके फ्लो ब्लड को कंट्रोल करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है हडमानिया का, दैट इज हार्ट ऑफ हडमानिया कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ब्लड थ्रू रिवर्स पेरिस्टालसिस। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हडमानिया में जो है फ्लो ऑफ सर्कुलेशन 2 तरीके से होता है। एक तो जब जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, बीट करता है फ्रॉम वेंट्रल टू डॉर्सल साइड, और दूसरा इसके बिल्कुल अपोजिट है, दैट इज फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल साइड। तो वन बाय वन हम दोनों साइड को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है फ्रॉम वेंट्रल टू डॉर्सल साइड।
इसमें पहला स्टेप क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट हो जाएगा वेंट्रल ओल्टा के थ्रू और वो उसको सप्लाई कर देगी कार्डियोवेस्कुलर वेसल को और डिस्ट्रीब्यूट कर देगी बॉडी के बाकी पार्ट्स को। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कलेक्ट होगा ब्रैंकियोवेस्कुलर वेसल से, जो ज्वाइन कर लेगी डोर्सल ओर्टा को, और डोर्सल ओर्टा से वो जाएगा ट्रांसवर्स ब्रैंकियल वेसल में, जहाँ से वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। फिर क्या होगा, इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस कलेक्ट हो जाएगा हार्ट में बाय वेंट्रल ओर्टा। इसके रिवर्स में रहेगा डोर्सल टू वेंट्रल, जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा कार्डियोवेस्कुलर वेसल से हार्ट में, और फिर वहां से जो है पंप होगा वेंट्रल ओर्टा में एंड सप्लाइज टू ट्रांसवर्स ब्रैंकियल वेसल्स फॉर ऑक्सीजनेटेड। तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी कलेक्टेड बाय डोर्सल ओर्टा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द viscera. Deoxygenated blood from viscera to heart by cardiovascular vessel. So this figure shows the complete course of blood circulation in heart mania. जैसे मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड्स में बताया दोनों टाइप का, वेंट्रल टू डोर्सल एंड डोर्सल टू वेंट्रल। तो इस फिगर में मैं आपको कंप्लीट जो है उसके बारे में फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक सॉलिड एरो है और एक डॉटेड एरो है और दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। तो इसमें दोनों एरो से अलग अलग तरीके से जो है वेंट्रल टू डोर्सल और डोर्सल टू वेंट्रल जो है फ्लो ब्लड को शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे वेंट्रल टू डोर्सल। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेंट्रल ओर्टा में कलेक्ट होगा और वो जो है सप्लाई होगा कार्डियोवेस्कुलर वेसल को। कार्डियोवेस्कुलर वेसल क्या करेंगे, उसको सप्लाई कर देगी बॉडी के सभी पार्ट्स में, ठीक है। तो ब्लड फिर क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा ब्रैंकियोवेस्कुलर वेसल से, जो ज्वाइन करेगी फिर डोर्सल ओर्टा को, जो सप्लाई करेगी फिर ब्रैंकियल वेसल को, ब्रैंकियल साइट में। वहाँ से ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस किस में कलेक्ट हो जाएगा, वेंट्रल ओर्टा में। तो ये तो हो गया वेंट्रल टू डोर्सल फ्लो। इसके अपोजिट जो है डोर्सल टू वेंट्रल, उसमें क्या रहेगा, जो कार्डियोवेस्कुलर वेसल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है बॉडी से कलेक्ट करेगी और सप्लाई करेगी वेंट्रल ओर्टा को। वेंट्रल ओर्टा फिर उसको सप्लाई करेगी ब्रैंकियल वेसल्स को, जो उसे ले जाएगी ब्रैंकियल सैक में। वहाँ ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कलेक्ट होगा ब्रैंकियल वेसल्स के थ्रू और वापस आ जाएगा डोर्सल ओर्टा में। डोर्सल ओर्टा फिर उसको सप्लाई कर देगी ब्रैंकियोवेस्कुलर वेसल को, जो बॉडी के सभी पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अगेन जो है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और किससे कलेक्ट होगा, कार्डियोवेस्कुलर वेसल से, और वो उसको सप्लाई कर देगा वेंट्रल ओर्टा में। और इस तरीके से डोर्सल जो टू वेंट्रल फ्लो ब्लड है उसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जब वेंट्रल से डोर्सल जो है ब्लड फ्लो कर रहा है और जब डोर्सल से वेंट्रल कर रहा है तो सभी ब्लड वेसल्स का फंक्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यही एक यूनिक फीचर है हार्ट का कि उसमें जो फ्लो ब्लड है वो अलग अलग डायरेक्शन में रहता है, वेंट्रल टू डोर्सल एंड डोर्सल टू वेंट्रल। तो दिस इज अबाउट दी कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। नेक्स्ट जो सिस्टम है दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हेडमानिया का इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल, हैविंग जस्ट वन नर्व गैंग्लियन एंड पेरिफेरल नर्व्स। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज़ नर्व गैंग्लियन, और इस तरफ जो नर्व फाइबर्स हैं दैट इज़ एंटीरियर नर्व फाइबर, एंड इस तरफ जो फाइबर है दैट इज़ पोस्टीरियर नर्व फाइबर। तो इन सबको मिला के क्या बन जाता है, नर्वस सिस्टम जो है हेडमानिया का। नेक्स्ट है अगर हम नर्वस सिस्टम को कैटेगराइज करें तो पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इनको हम कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, इट इंक्लूड्स अ सिंगल सॉलिड नर्व गैंग्लियन आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन, present in mid-dorsal line of intersiphonal region, consists of bipolar and multipolar neurons, controls body reflexes। जो मैंने अभी पीछे भी आपको डायग्राम में दिखाया था नर्व गैंग्लियन, उसी को हम ब्रेन बोलते हैं, और दोनों साइफोनल रीजन के वो बीच में प्रेजेंट रहते हैं। Peripheral nervous system, it consists of 3 anterior and 2 posterior nerves. All nerves arise from nerve ganglion and are of mixed type. Anterior nerve supplies to tentacles and inner epithelium of branchial siphon. Posterior nerve to atrial siphon. ये अभी मैंने पीछे भी आपको डायग्राम में दिखाया था, एंटीरियर नर्व्स एंड पोस्टीरियर नर्व और ये नर्व गैंग्लियन। तो उसी को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद कुछ सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट रहते हैं और रिसेप्टर्स इनको हम बोल सकते हैं। तो उसकी जो ये टेबल मैंने बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं रिसेप्टर्स के टाइप, उनकी लोकेशन और फंक्शन।
तो सबसे पहले है टेंगो रिसेप्टर्स. These are present on non-vascular area of test, located on tentacles, margins of siphons and covering of vascular ampullae. तो फंक्शन क्या है? These are sensitive to touch, यानी ये कौन से रिसेप्टर हैं? टच रिसेप्टर्स हैं. The second category है that is photoreceptors. These are present on margin of siphons and covering of vascular ampullae that contains red pigment, and these are sensitive to light, यानी ये light receptors हैं, light को sense करेंगे. Third है thermoreceptors. These are present on epithelium of siphons and these are sensitive to temperature. Fourth category है that is rheoreceptors. These are present on margins of siphons and these are sensitive to water currents. The last category है that is chemoreceptors and located on tentacles and dorsal tubercle and these are sensitive to chemicals. So this is the list or table of sense organs or receptors that are present in Herdmania. Tentacles are olfactoreceptor and test water quality and size of particles. Branchial tentacles have rich nerve supply. तो ये जो है वाटर जो एंटर कर रहा है उसकी क्वालिटी को भी चेक करने में हेल्प करते हैं. और डोर्सल ट्यूबरकल वाला जो पार्ट है दैट इज स्मॉल सेंसरी स्ट्रक्चर हैविंग रोड बेस एंड टू स्पाइरली coiled lobes. Each lobe has coiled ciliated channel. It is present in prebranchial zone of pharynx. It smells and tastes the water and also act as olfactocum gustatory receptor. नेक्स्ट जो सिस्टम है दैट इज एक्सक्रेटरी सिस्टम. तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो है वो है न्यूरल ग्लैंड. फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन की हम बात करें तो इसमें क्या रहेगा? जो भी वेस्ट मटेरियल है, ज़ैंथीन या यूरिक पार्टिकल्स हैं, वो सारे कलेक्ट हो जाएंगे नेफ्रोसाइट्स के अंदर और फिर किस में पास हो जाएंगे? पास इन न्यूरल ग्लैंड कैविटीज और फिर डिस्चार्ज इनटू प्रीब्रैंकियल जोन बाय डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड. तो बहुत ही सिंपल सा इनका जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम रहता है. जो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है दैट इज न्यूरल ग्लैंड. उसके बाद कई बार जो है न्यूरल कॉम्प्लेक्स के बारे में 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है. तो व्हाट इज न्यूरल कॉम्प्लेक्स? न्यूरल कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है? नर्व गैंग्लियन है, न्यूरल ग्लैंड है और डोर्सल ट्यूबरकल है. तो जब न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लियन और डोर्सल ट्यूबरकल इन तीनों चीज़ों को हम क्यूमुलेटिव उसमें कंबाइंड उसमें जो हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूरल कॉम्प्लेक्स. तो इस फिगर में आप देख सकते हैं न्यूरल कॉम्प्लेक्स में ये न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट है, ये नर्व गैंग्लियन है और ये स्पाइरली कोल्ड स्ट्रक्चर है दैट इज डोर्सल ट्यूबरकल. इन तीनों को मिला के क्या बनता है? न्यूरल कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको हर्डमानिया के कैरेक्टर से बताए थे. तो आपको बताया था कि हर्डमानिया बाइसेक्सुअल है या फिर हम कह सकते हैं हर्माफ्रोडाइट है. बट दोनों जो है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तभी हम उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, इसमें तब भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट रहती है प्रोटोगाइनस कंडीशन. तो अभी हम दोनों जो है इसके गोनैड्स के बारे में और बाकी जो इसके गैमेट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले गोनैड्स पेयर्ड हैं. राइट गोनैड लाइज अबो पेरिकार्डियम, लेफ्ट गोनैड लाइज इन इंटेस्टाइनल लूप. जो मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल का जो स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें भी दिखाया था. Each gonad is elongated structure with 10 to 25 rounded lobes in 2 rows. Each lobe has peripheral large red colored testicular region and inner smaller pinkish colored ovarian region. Testicular region has spermatic fascia forming spermatogonia, spermatocytes and spermatozoa. And the ovarian region has ovarian follicles. So it is a hermaphrodite gland. Next है gonoducts. Each gonad has an oviduct and vasa difference. Vasa difference, or we can say spermatic duct, is formed by union of spermatic ductules coming from the testicular zone of each lobe, whereas oviduct is formed by union of ovarian tubules coming from ovarian zone of each lobe. Gonoducts from both sides opens independently in phloem. तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं जो मैंने अभी बताया कि ये बहुत सारे जो हैं लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं और ये जो है ओविडक्ट है और ये स्पर्मेटिक डक्ट है. उसके बाद जो ये वाला लोब है वो टेस्टिस लोब है और ये ओवेरियन लोब है. तो दोनों ही जो है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, जिससे कौन सी जो है इसकी कंडीशन क्रिएट होती है दैट इज हर्माफ्रोडाइट. तो ये जो है गोनैड का व्यू है इनर साइड से हर्डमानिया का.
नेक्स्ट हम बात करेंगे गमीट्स की। तो दोनों टाइप के गमीट्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ। These are carried through gonoducts to cloaca and then outside with the outgoing water current. तो ये जो gonoducts प्रेजेंट है, जितने भी गमीट्स यहाँ पर जो है टेस्टिस और ओवेरियन रीजन में बनेंगे, वो जो है स्पर्मेटिक डक्ट और ओविडक्ट के थ्रू जाएंगे और यहाँ पर जो है अपर्चर और उससे जो है बाहर रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद जो है मेल गमीट दैट इज स्पर्म, दीज आर वेरी माइन्यूट अबाउट 4 mm in length. Structurally it has broad head, this one, with the nucleus and beak shaped acrosome. This anterior region is acrosome, this is nucleus, so this will make a head of sperm. A short middle piece and long tail. Sperm shows polymorphism on the basis of acrosomal size. तो जो acrosome के size के variation की वजह से जो है इसके स्पर्म के अंदर जो है पॉलीमॉर्फिज्म जो है कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट है ओवा फीमेल गमीट, इट्स साइज इज अबाउट 3 mm. इट इज माइक्रोलेसिकल, दैट मीन्स हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ yolk. Has large nucleus and nucleolus and dense chromatin granules surrounded by 3 layers, that is vitelline membrane, inner chorion, outer chorion. तो मैं अभी नेक्स्ट डायग्राम में भी आपको दिखाऊंगी। The space between vitelline membrane and inner chorion, this membrane and this membrane, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा उसे हम बोलेंगे पेरीविटेलाइन स्पेस, and that is filled by perivitelline fluid. And the space between inner chorion and outer chorion, this and this layer between inner chorion and outer chorion is known as interchorionic fluid. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये राउंडेड जो है मैच्योर ओवम है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके अंदर न्यूक्लियोलस है। तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखिए, बाहर जो है बहुत सारे जो है फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद ये जो है आउटर कोरियन है, ये इनर कोरियन है। उसके बाद जो ये वाली लाइनिंग है दैट इज विटेलाइन मेम्ब्रेन, और विटेलाइन मेम्ब्रेन और इनर कोरियन के बीच का जो फ्लूइड है, जो स्पेस है, उसको हम बोलते हैं पेरीविटेलाइन फ्लूइड। तो ये मैंने आपको पीछे भी बताया था, ये सारे पार्ट्स जो हैं उसके फीमेल गमीट दैट इज मैच्योर ओवम। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हमने सारे सिस्टम्स की स्टडी करी, हडमानिया के बारे में उसके बेसिक कैरेक्टर्स पढ़े, सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ी और उसके बाकी सारे सिस्टम्स को हमने स्टडी किया। तो इसमें बहुत सारे जो है शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जिसमें आप जैसे न्यूरल कॉम्प्लेक्स है या हार्मोफ्रोडाइट क्या होता है, प्रोटोकाइनस कंडीशन क्या है, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आपको पूछे जा सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत बार डिटेल में जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप उस हिसाब से उसको बता सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा और आप स्टडी कर सकते हैं हडमानिया टाइप स्टडी। सो थैंक यू सो मच।